Hello students, today we are going to analyze the next topic from a syllabus. The name of the topic is Into the Wild. Children, Into the Wild is basically a topic written by a wild photographer, Kiran Purandare. Now Kiran Purandare, children, just to acquaint you all about the writer, BCom के studies के बाद में उन्होंने environmental studies, he had taken up environmental studies at the Jordan Hill College of Education in Scotland. तो चलो साहित्य पुरस्कार उनको दिया गया था. अच्छा, पूना के भाई माधव बागल अवार्ड एंड द बेस्ट लिटरेचर अवार्ड गिवन बाय कल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट फॉर हिज सखा नागजीरा. चलो आप you will be shocked to know that he had spent almost 400 days inside Nagzira, which is actually a wildlife sanctuary, we can say, and here by forest areas, and wrote his award winning book. तो 400 दिन अंदर रहने के बाद उन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस लिखा है, that is actually has won award for his book. अभी ये जो एक्सर्प्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, एक्सर्प्ट यानी होता है एक्सट्रैक्ट. It has been taken from that same book. He is a wildlife expert. अच्छा, उनके और भी बहुत ज़्यादा हॉबीज है बच्चों, जैसे कि इज अ एविड बर्ड वॉचर. अच्छा, he is a writer and an honorary wildlife warden in Maharashtra. He works for the protection of wildlife. He is the founder of the Nisarg Ved organization, which works for nature conservation and community work around Nagzira, Navegaon. अच्छा, that's a tiger reserve in Bhandara and Gondia districts. अच्छा, उन्होंने एक किकास बर्ड क्लब भी फाइंड आउट किया हुआ है in order to spread bird farming, which is very popular among school going children of Maharashtra. तो that's a किकास बर्ड क्लब भी फॉर्म किया हुआ है उन्होंने. अभी चलो ये जो लेसन हम लोग को दिया जा रहा है यहाँ पे, इट्स रिटन इन 2 डिफरेंट पार्ट्स. इसका पार्ट 1 जो है, एज द नेम सजेस्ट, द एक्सेप्ट इज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर वेयर किरण पुरंदरे, द सॉलिटरी ट्रैवलर, इनको अकेले ही ट्रैवल करने की आदत थी, इज कंप्लीटली लॉस्ट इन द जंगल्स ऑफ उम्बरजरा, इट्स लाइक एवतमाल, भंडारा डिस्ट्रिक्ट्स, राइट? यस. तो हाउ ही वाज लॉस्ट इनटू द जंगल एंड हाउ ही केम आउट ऑफ इट, ये उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा. ही नरेट्स हाउ ही लॉस्ट हिज वे एट द फॉल ऑफ द डस्क and in the terrifying turmoil he underwent thereafter. तो किस तरीके से शाम होते हुए एक जंगल में खो गया था, और उसके बाद में बच्चों जो भी फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस था उनका, उन्होंने यहाँ पे इस एक्सर्प्ट में डिस्क्राइब किया हुआ है. शाउटिंग फॉर हेल्प वुड लिटरली मीन क्राइंग इन द विल्डरनेस. उस सुनसान जंगल में बच्चों लोग मदद के लिए चिल्लाना तो पागलपन ही होगा, क्योंकि वहाँ पे एनिमल्स के अलावा आपको कोई मदद करने वाला मिलेगा नहीं. And he also gives a detailed description of how he found his way towards the पिट्जरी. तो बच्चों लोग पिट्जरी के गांव के तरफ उन्होंने अपना रास्ता किस तरीके से ढूंढ लिया था, ये उसका डिस्क्रिप्शन रहेगा. अच्छा, पार्ट 2 जो है बच्चों लोग इस चैप्टर का, दिस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम CN ट्रैवलर, दैट इज मैगजीन पब्लिश बाय लैंड रोवर इंडिया. अच्छा, और ये भी एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर के बारे में है जिनका नाम है शाजुंग, known for his wildlife photography. It briefs us about his entry into this world of wildlife photography and the insight that he received during his journey regarding the loss of habitat of those heroes of the jungle and genuine efforts that he took by establishing. We have something like children Buffer Conflict Resolution Trust of India करके एक organization उन्होंने initiative launch किया हुआ है for the conservation of forests by educating the local rural folks and providing them with an sound reliable source of income. तो ये उनका initiative, तो we'll be dealing that in detail, but today children, in today's lecture I'll tell you about the first part of the story. Okay, so let's see Kiran Purandare and how he got lost into the jungle and how he reached to the village of Pitzari. Now here we go children. The 8.5-year long day inside the hide. क्या बोला देखो, 8.5 hour
long day inside the hide. Hide, children, here it's like something you prepare just to look like the surroundings, something which is built, okay, it's artificial. Was as fruitful as the jamba tree standing tall on the edge of Umbarzara. यहाँ पे बच्चों बहुत सारे trees के नाम आएंगे. Now here I won't be able to show you how they exactly look, but you could just Google out for more information onto that. Now before wrapping up my day at its natural waterhole, I took entries of the avifauna. Avifauna, children, there are certain birds which are found in only one particular place. एक ही एरिया में मिलने वाले कुछ birds होते हैं, उनको हम लोग avifauna बोलते हैं. Since I was alone, I rushed to Pizzari village where I was stationed. तो कहाँ पे ठहरे हुए थे वो? पिज्जरी के विलेज में. I camouflaged the hide, took my essentials. Camouflage is like, children, you know, whenever you cover up something to hide from other places, it is called as camouflage. Disguise बोल सकते हैं बच्चों लोग, or to cover something. अच्छा, came out of the hide and stretched out to my heart's content. तो अंदर जहाँ पे छुप के बैठा था वहां से बाहर निकला हो, and he must have stretched it hands to his heart's content. I lifted my camera bag and took the familiar trail to Pizzari. तो उन्होंने अपना कैमरा बैग उठाया और उनको, ट्रेल ये वर्ड का मतलब क्या होता है? रोड. वो रोड जो उनको बहुत फैमिलियर था, फैमिलियर मतलब जाना पहचाना जो रास्ता था, उन्होंने ले लिया था. Now negotiating the webbed leaves of teakwood and moha trees. Negotiating the webbed leaves मतलब एकदम घने पत्ते रहते हैं बच्चों एक दूसरे से जुड़े हुए. teakwood, moha trees and trying to make minimal sound. अभी जंगल में से चलते हो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि लाइक आप जितना हो सके उतना कम आवाज करने का. I was treading cautiously among the woods. तो जंगल में से बहुत cautiously चलते हुए जा रहा था. Treading is like here, it could be walking cautiously among the woods. Now, walking alone in a jungle needs more alertness than walking with a companion. तो जंगल में से चलते वक्त बच्चों लोग, आप अकेले जब रहोगे ना तो आपको ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ता है. अगर कोई आपके साथ कंपेनियन रहेगा, then you don't need to be so much alert. And I was alone here like a fox. मतलब पूरे जंगल में ऐसे लग रहा था कि एक ही फॉक्स के जैसे फील हो रहा था उसको. Following the trail silently, watching with wide open eyes, my ears were grasping a variety of sound just when a familiar sound stunned me. तो बच्चों जैसे वो धीमी गति से चल रहा था वहां से, वाइड आईज ओपन थे उनके एकदम. अच्छा, और कान आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे और सडनली उनके कान पे बच्चों लोग एक फैमिलियर साउंड स्ट्रक हुआ. क्या साउंड था? खैक खैक, खैको खैक, ऐसा साउंड आता है बच्चों लोग. अच्छा, अभी ये साउंड कौन करता है पता है आपको बच्चों लोग? कुछ बंदर होते हैं, आपने शायद सुना रहेगा, देखो लंगूर और लंगर. नाउ दैट्स अ अलार्म कॉल. द लीडर ऑफ द गैंग ऑफ द लंगर्स was sitting on the tall tree making alarm calls. तो लंगरों का एक पूरा का पूरा झुंड था बच्चों लोग, और पेड़ के ऊपर बैठ के वो लोग अलार्म कॉल दे रहे थे. अलार्म कॉल का मतलब क्या होता है यहाँ पे? आउट ऑफ फियर फॉर लाइफ. Rest of the Langurs brigade continued raising the alarm call, and the network of alarm call was expanding its range as the petrified Langurs speeded to the trees near and far and secured their places on treetops. तो सब लंगर इधर उधर भाग रहे थे, खैक खैक करके आवाज कर रहे थे, एक दूसरे को अलार्म दे रहे थे कि कुछ खतरा है आजू बाजू में करके, और भागते हुए आजू बाजू में जहां पे भी किधर पेड़ मिल रहा था उसके टॉप पे जाके सेव कर रहे थे खुद को. Now all this upheaval was created by only one animal's presence. लंगर जब आवाज करते हुए चलो तो आप समझ जाने का कि वहां पे एक ही एनिमल का प्रेजेंस हो सकता है, और वो कौन होता है? लेपर्ड. Now many animals make alarm calls when they see a predator. Predator मतलब चलो कौन? शिकारी बोल सकते हैं यहाँ पे, right? A tiger or a leopard nearby. And the langur is most reliable when it comes to finding clues about the presence of the apex predators in the jungle. तो जंगल में आजू बाजू में जो सबसे खतरनाक शिकारी होते हैं, यानी कौन? टाइगर. वो अगर आजू बाजू में है क्या नहीं है, ये अगर जानना चाहोगे आप,
तो लंगर का जो अलार्म कॉल होता है ना बच्चों, वो बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है। आप उनके ऊपर विश्वास कर सकते हो कि अगर वो साउंड करते हैं इसका मतलब आजू बाजू में कुछ खतरा है। द माइटी एलूसिव लेपर्ड ऑफ उम्बरज़रा वॉज आउट ऑफ इट्स लायर। माइटी, इट्स लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग, वी कैन से। एलूसिव, जो आपको दिखेगा नहीं, आपको हमेशा धोखा देता रहेगा। लेपर्ड ऑफ उम्बरज़रा, ये वहाँ के वो अभयारण्य का नाम आता है बच्चों लोग। हाँ, दिस इज द नेम ऑफ दैट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वॉज आउट ऑफ इट्स लेयर। लेयर मतलब बच्चों लोग अपने डेन, अपने सीक्रेट प्लेस से वो बाहर था। एंड ही वॉज ऑन द प्रॉल। प्रॉल मतलब लाइक शिकार पे निकला हुआ था ना। एंड द स्टेल्दीली मूविंग फिगर इन स्पॉटेड गोल्ड ब्लैक क्लोक वॉज स्पाइड बाय दीज लंगर्स। तो धीरे धीरे चोरी छुपे यहाँ वहां पे शिकार को ढूंढते हुए जो मूवमेंट हो रहा था, स्पॉटेड होते हो राइट, गोल्ड और ब्लैक कलर का क्लोक पहना ऐसे लगता है। हाँ, तो उनको नजर में आया था। किसकी नजर में आया था बच्चों? लंगर्स के नजर में आया था। इवन द स्मॉल वंस फ्रॉम द लीजन ऑफ लंगर्स वर गिविंग अलार्म कॉल्स। तो जो लंगरों का पूरा झुंड था ना बच्चों, उसमें जो छोटे से छोटे लंगर भी थे ना, वो भी अलार्म कॉल दे रहे थे, क्योंकि उनको भी कहीं से वो खतरा महसूस हो रहा था। वापिस से बच्चों लोग चेक चेक। आई स्टेड पुट, मतलब मैं उधर का उधर ही रुका। गॉज द लीडर लंगर्स टारगेट साइट एंड स्कैन द एरिया विजुअली। तो जो लंगरों का लीडर था वो जिधर देख रहा था वहां पे राइटर ने भी देखने की कोशिश की, और राइटर पूरा का पूरा एरिया विजुअली स्कैन कर रहा था। टुक सम स्टेप्स, स्टॉप्ड अगेन। कुछ पैर चला और वापिस से रुक गया। अ फ्रेश स्कैट वॉज लाइंग बिफोर मी ऑन द ट्रेल। स्कैट का मतलब क्या होता है बच्चों लोग? इट्स लाइक द एनिमल ड्रॉपिंग्स, एनिमल टॉयलेट। अच्छा, द ब्लूइश पर्पल फ्लाइज वर हॉवरिंग ओवर इट। मक्खी बैठ रही थी उसके ऊपर। एंड आई वॉज श्योर दैट द लेपर्ड वॉज समवेयर नियर। अभी एक बात तो क्लियर थी कि लेपर्ड कहीं पे आजू बाजू में ही था। एंड द डिस्टेंट अलार्म कॉल ऑफ 4 horned antelope. Antelope, children, it's a kind of a deer, right? Horns रहते ऊपर। Was adding to the chaos. वो भी alarm call दे रहा था। I barely walked around 15 meters and stopped. 15 मीटर चलाने के लिए रुक गया। And I had apparently entered into the sanctorum of a miracle called leopard. Sanctorum मतलब चलो होता है, it's a very holy place. मतलब secret place we can say. ठीक है, जहाँ पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम किया जाता है ऐसी जगह, जैसे मंदिर के अंदर कैसे सैंक्टम होता है ना, गाभारा बोलते हैं उसको। यस, बट द बिग कैट वाज नॉट विजिबल। लेकिन ये टाइगर या फिर लेपर्ड दिख नहीं रहा था। इट इज एन एलूसिव एनिमल एंड द सराउंडिंग्स वर रिमाइंडिंग मी दैट आई वॉज ऑल अलोन टाइम एंड अगेन। इसको बात एक ही बात याद आ रही थी कि मैं अकेला हूं यहाँ पे करके। As I moved forward on the trail to Pizzeri, the fading alarm calls were still heard in the background. जैसे पिज्जरी के गांव की तरफ मूवमेंट कर रहा था, बैक साइड में बैकग्राउंड में उसको वापस से वो अलार्म कॉल्स सुनाई दे रहे थे। I could tell instinctively that the leopard had moved away. तो अभी तक इसको पता चल गया था कि लेपर्ड शायद वहां से चला गया था। Now, meanwhile, I saw a man standing at a distance with a stick in his hand. As I approached, he appeared spooked due to alarm calls of the leopard. तो जैसे वो आगे जा रहा था उसने डिस्टेंस पे देखा, वहां पे एक आदमी खड़ा था, उसके हाथ में एक स्टिक थी। वो भी थोड़ा सा डरा हुआ लग रहा था वो लेपर्ड के अलार्म कॉल्स की वजह से। We greeted each other. He was Raju Iskape from Pizzeri. तो वो उधर का लोकल ही था, चलो उसका नाम राजू था, पिज्जरी से था। अच्छा, he had been to collect logs but retreated due to leopard's movements. क्या लकड़ी जमा करने के लिए आया था, लेकिन लेपर्ड का थोड़ा सा शायद वहाँ पे इशारा दिखते ही ये वहाँ से वापस जा रहा था। राजू वॉज अमेज्ड बाय माई रेगुलर सॉलिटरी विजिट्स टू उम्बरज़रा। अभी राजू बहुत एक्साइटेड होता है एंड ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड कि अकेले आदमी कैसे उम्बरज़रा के फॉरेस्ट में विजिट करता है करके। एंड विच इज एक्चुअली द हेवन फॉर टाइगर्स। हेवन मतलब चलो अ सेफ प्लेस। Leopards and those sloth bears. We stopped under a kusum tree to take a break. तो ये दोनों जन भी रुके
एक कुसुम ट्री के नीचे थोड़ा ब्रेक लेने के लिए. एंड वी बोथ फेल्ट अ बिट रिलैक्स्ड, क्योंकि दोनों के लिए एक दूसरे का थोड़ा सहारा हो गया था ना. नाउ वी वर 4 eyes 4 hands with a stick. Then we both resumed our walking tour. तो क्या बोलता है देखो अभी. Now we were 4 eyes, 4 आंखें थी, 4 हाथ थे और हाथ में एक स्टिक भी था ना. यस. और फिर उन्होंने अपना टूर वापस से चालू किया था. They started walking. There was one tiny track that broke out of the main trail. मेन रास्ते से एक छोटा सा रास्ता बाहर जा रहा था. I will take this route. You go straight, said Raju and turned right. तो राजू ने किरण पुरंदर को क्या बोला कि तुम एक स्ट्रेट वाला रास्ता पकड़ लो, मैं ये वाले रास्ते से चला जाता हूँ. I kept walking straight until I climbed a familiar hillock. hillock मतलब छोटा सा पहाड़ जैसे, तो उसके ऊपर चढ़ गया था. I crossed the cement pillar and stones stacked by Forest Department Corporation to mark the boundary of the forest compartment. तो वहाँ पे बच्चे लोग पत्थर लगा के बाउंड्री बनाई गई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की. Took another trail, फिर एक दूसरा रास्ता पकड़ा. After climbing down, walked across a beautiful mahua tree. Now the trees, you need to see the pictures on Google, children, loaded with reddish brown leaves. और उसके नीचे का जो ग्राउंड था बच्चों लोग, द ग्राउंड अंडर द ट्री वॉज क्लीन्ड वेरी वेल, मतलब एकदम साफ था. एंड द थॉट इंस्टेंटली फ्लैश्ड इन माई माइंड, आई हैड लॉस्ट माई वे. और फिर उसको पता चला कि मैं खो गया हूं. नेक्स्ट मोमेंट आई फाउंड अनदर डस्की ट्रेल, मतलब वहां पे उसको और एक रास्ता दिखाई दिया. हेस्टिली आई टुक द ट्रेल विच टुक मी फ्रॉम अ नैरो गॉर्ज. गॉर्ज यानी क्या, घाट होता है बच्चों लोग, टू एन ओपन फील्ड. एंड द एरिया वाज सराउंडेड बाय हिलॉक्स ऑफ ड्राई deciduous tropical forest. Deciduous are those very dense forest, children, having trees जो समर सीजन में मतलब अपने लीव्स को शेड करते हैं, सिर्फ फॉरेस्ट को डेसिडियस ट्रीज करके बोलते हैं. आई टर्न बैक टू स्पॉट द सन. तो जैसे पीछे टर्न किया उसने और फिर सूरज की तरफ देखा. नाउ द जोग्राफिकल वेस्ट वॉज सेट. द डस्की ट्रेल हैड वैनिश्ड. गुड हेवेंस, आई वॉज लॉस्ट, completely lost in the jungle, that too at a very dreadful time, and the sun was melting down like a fleeting runner. तो एक भागने वाले व्यक्ति के जैसे गायब हो रहा था. कौन? सूरज. और उसी टाइम पे इसको रियलाइज हुआ था कि खो गया है कहीं पे. I soaked in my own sweat, मतलब पसीने से भीग गया ये. I felt like shouting to my heart's content, but there was no other soul to listen to my साउंड्स इन दिस विल्डरनेस. उसको जोर से चिल्लाने का मन कर रहा था, लेकिन वो पूरे के पूरे जंगल में कोई दूसरी आत्मा भी नहीं थी जो इसको सुन सकती थी वहां पे. आई हैड 2 bags with me. The Shabnam bag having the camera and the other was a small colorful handmade bag used in villages to carry tiffin. तो एक कैमरा का बैग था और एक टिफिन का बैग था. And the tiffin still had some stuff, but I didn't feel like having it. And the blossoming boxwood trees, the whoop whoop sound of cockle bird and the song of robin bird all appeared alien to me. मतलब ये उसको यहाँ पे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था अभी. It was more than an hour. 1 घंटे से ज़्यादा टाइम हो गया था बच्चों लोग. I was still there searching for a suitable tree to climb and get secured. तो उसको लग रहा था कि एक आध पेड़ मिल जाएगा तो उस पेड़ के ऊपर चढ़ के मैं खुद को सेफ कर दूंगा. Turn back to the trail you left, mind was telling me. पीछे जाओ और जो रास्ता तुमने छोड़ दिया था वो रास्ता वापस से पकड़ो, उसका एक मन उसको बता रहा था. But there were no signs of the trail. लेकिन रास्ते का भी कुछ निशानी नहीं दिख रहा था बच्चों लोग. I had no other way to climb the hillock before me. There were more hillocks and some more around the one I was standing. मतलब सब पहाड़ ही थे सामने छोटे छोटे. Near my feet were the dried up droppings of sloth bear. तो वहाँ पे sloth bear का भी presence था क्योंकि उसने droppings यानी टॉयलेट दिख रहा था वहाँ पे. The sloth bear of Umbarsara must be out in open sniffing for food. तो बच्चों लोग जो भालू रहेगा ना वो sloth bear, वो तो अभी इधर उधर मतलब भूखा रहेगा और शायद अपने खाने को शायद सूंघता रहेगा ना इधर उधर, sniffing for food. I cautioned myself, thinking of averting all sorts of
eventuality and I made a move. I ran down the hillock that I had climbed up at a frantic speed. तो वापस से वो पीछे भागना चालू किया उसने. And the west was to my right hand side now. तो राइट साइड देखा तो वेस्ट का साइड दिखाई दे रहा था. The evening breeze flew through my wet curled hair and my stomach was aching. I kept walking in hope. तो थोड़ी सी उम्मीद लगा के चलता गया मैं. Around 50 steps I found a bright red soil trail. तो 50 स्टेप चलते ही उसको एक रास्ता दिखाई दिया. I found my silver lining on the trail. तो एक उम्मीद की किरण दिखाई देना बोलते हैं ना बच्चों लोग. In that way there were marks of bicycle wheel on the trail. That was a big consolation for me and there must be a village nearby. I reassured myself. More questions resurfaced. How far is the village and where, in which direction, कि गांव कहाँ पे है, कितनी दूर तक है, कौन से डायरेक्शन में, उसको कुछ आंसर्स नहीं थे. I climbed one more hillock and tried to locate signs of human civilization. तो दूर दूर तो कहीं पे लोगों की बस्ती वगैरह दिखाई देती है क्या, इसके ऊपर वो नजर फेंक रहा था. And my legs were trembling. As I reached the top of the hill, I jumped with joy. I heard the sounds of people talking in the loudspeaker. तो जैसे ही वहां पे हिल टॉप के ऊपर पहुंचा तो he jumped with joy, खुशी से उछल गया था वो, क्योंकि उसने लोगों को लाउड स्पीकर पे बात करते हुए सुना था. And in a jiffy, I ran down the hill towards the sound with full vigor. I stumbled and fell down. तो भागते भागते गिर भी गया था. Saw droppings of blue bulls nearby. Struggled, stood up, decided which direction to move on, and the signs of civilization were visible. लोग दिखाई दे रहे थे उसको वहाँ पे. And the tiny sleepy village of Pitzeri was visible through the green woods. तो पिट्जरी का गांव अभी उसको वहाँ पे हरी झाड़ियों के बीच में से दिखाई दे रहा था. The lantern of राजीराम भालावीज फार्म. तो राजीराम भालावी का जो खेत था और वहाँ पे जो फार्म था बच्चों, फार्म वो दिखाई दे रहा था. लाउड स्पीकर इंस्टॉल फॉर केशव भालावीज मैरिज. ऑल वर इन अ क्लियर साइट. तो सब कुछ दिखाई दे रहा था उसको वहां से. टर्न लेफ्ट टू स्पॉट द विलेज, lake and familiar hillock. Now here what actually happened is this. Sui hudki, the dog barked or welcomed me to the village. तो कुत्ते ने भौंक के उसको पता नहीं भगाया था कि उसको वेलकम किया था, ऐसे फील हो रहा था उसको. The first thing I did was to take a bath. The shaking of limbs had lessened a bit. तो सबसे पहले उसने जाके वहां पे नहा लिया था. हाथ पैर जो उसके कांप रहे थे वो थोड़े कम हो गए थे. एंड द स्टमक एक स्टार्टेड अगेन. एट टू द फुल एंड देन स्लम्प्ड ऑनटू द कॉट. पेट भर के खाना खाया था उसने और बाद में कॉट के ऊपर लेट गया था. लाइंग अवेक लुकिंग एट द स्टार स्टडेड स्काई, आई स्पोक टू माई सेल्फ, देयर स्टिल एग्जिस्ट अ जंगल वेयर वी कैन गेट लॉस्ट. इजंट दिस अ गुड लक, कि आज भी अपने आजू बाजू में ऐसे जंगल है जहाँ पे हम लोग खो सकते हैं, वेयर वी कैन गेट लॉस्ट. ये हमारा गुड लक है बच्चों लोग, क्योंकि जंगल्स तो अभी है नहीं और उसके अंदर भी अगर आपने एक एक्सपीरियंस किया जहाँ पे आप खो गए थे जंगल में, दैट मीन्स यू आर क्वाइट लकी. सो चिल्ड्रन, डिड यू जस्ट नोटिस हियर वी जस्ट डेल्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. ठीक है, जहाँ पे किरण पुरंदरे किस तरीके से जंगल में खो गया था, उसका वहाँ पे जो टर्मोइल था, उसका जो टेरिफाइंग एक्सपीरियंस था, लेपर्ड्स का वो जो एहसास था, और एट द एंड कैसे वो राजू उसको मिला था, उसके बाद में वो किस तरीके से भटक गया था, और फाइनली हाउ डिड ही मेड बैक टू द विलेज ऑफ पिट्जरी. तो उसका पूरा जो जर्नी है बच्चों लोग, उसको हमने यहाँ पे पार्ट 1 में पढ़ लिया है. ठीक है, इन द कमिंग लेक्चर चिल्ड्रन आई विल बी टीचिंग यू अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सेम चैप्टर. So that's all for today. Thank you very much. Take care. See you in the next lecture.